A very healthy morning, all of you. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, class 6, are you ready for the study? Great. So, beta, before I'm starting this chapter or continue this chapter, I just want to give you some important points or share with us some important points with you. The main and important thing, beta, it is very important to understand this chapter. You have to watch full video. आपको पूरी वीडियो देखना इट इज़ कंपलसरी और एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम आपको ये 3 बार वीडियो देखना है, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा. द नेक्स्ट थिंग, बिफोर आस्किंग द क्वेरी, again I am saying, if you having dictionary, if you having a particular problem in a particular word, अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप डिक्शनरी में से देखेंगे. if you don't have dictionary, तो you can just put the word on a Google, what is the meaning of this word. so basically वो word आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आ जाएगा. great. तो shall we start the chapter? great. now so beta, what is the chapter name? The chapter number 5 of history, the name of the chapter is, yes, the Vedic period. The Vedic period. So beta, we have already read about the Aryans and their spread in India. We already read about the Vedas. Tell me beta, how many Vedas are there? How many? Yes, you are totally correct. Basically 4 Vedas are there. And which is the oldest Ved? सबसे पुराना वेद कौन सा है? Yes, that is a Rigved. Rigved is the oldest Ved. Okay, we have already read about the political life of people, the social life and status of women, food and drink, entertainment, economic life, religious aspect of life. Now in today's class we are just going to study the 4 phases of life. So the first one, the 4 phases of life. How beta, listen, it is very important. 4 are Vedas, 4 ही हमारे वेद हैं, बेसिकली ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद. एंड 4 ही हमारे वर्ण हैं, द ब्राह्मण्स, द क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्र. नाउ द 4 phases ऑफ लाइफ. यहाँ पर बेटा आपको 4 phases ऑफ लाइफ में बताया गया है. इन अ ह्यूमन बींग्स लाइफ देयर इज़ अ डिवाइडेड इंटू 4 phases और अ 4 आश्रम. ओके, या तो इसे 4 phases कहेंगे या ही इसे 4 आश्रम्स कहेंगे. बेसिकली द फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य. The first one is brahmacharya, second one is grahastha ashram, the third one is vanprastha ashram and the last one is sannyas. Okay, brahmacharya, grahastha, vanprastha and sannyas. So beta, just one by one we have to read it. In the brahmacharya ashram, basically कब तक होता है? till 24 age तक होता है. In this beta, in this is the first phase of a life of a person was supposed to stay single, यानी कि वो सिंगल रहेगा, and attain education, यानी कि 24 साल, कम से कम 24 साल तक की उम्र में वो सिंगल रहेगा and एजुकेशन लेगा. दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम. ओके, ब्रह्मचर्य आश्रम. द सेकेंड वन इज गृहस्थ आश्रम. गृहस्थ आश्रम मीन्स इन दिस बेटा बेसिकली they have to meet for a marriage and building a family, यानी कि वो शादी करेगा और आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपनी फैमिली को बढ़ाएगा. इन दिस थर्ड फेज ऑफ पर्सन वी हैव सपोज टू बी विद द फैमिली बट सर्व टाइज विद द मटेरियलिस्टिक डिज़ायर. बेटा इन द थर्ड वानप्रस्थ आश्रम बेसिकली ये अपनी लाइफ में अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, चीज़ें हैं, उसे आगे बढ़ा के चलेगा. ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन इज द संन्यास आश्रम. इन दिस फोर्थ फेज द पर्सन लेफ्ट देयर फैमिली, लेफ्ट देयर होम एंड गो इनटू द प्रेयर एंड
सॉलिट्यूड। बेसिकली इन द लास्ट संन्यास आश्रम में सारी घर को त्याग कर, परिवार को त्याग कर, द पर्सन यू हैव टू गो इन द फॉरेस्ट और माउंटेन टू अटेंड द सल्वेशन, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रेयर के लिए वो अपना संन्यास ले लेना। सो बेसिकली देयर इज़ अ 4 आश्रम। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे बोलो। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, सेकेंड वन इज गृहस्थ आश्रम, the third one is vanprastha ashram, the last one is sannyas ashram. Okay, so these are the 4 basically phases of life in a Vedic period. Okay, now Inam Gaon Chalcolithic settlement in the Deccan region. बेटा Inam Gaon is a village name, जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, Inam Gaon. Okay, and where it is? So basically इनाम गाँव प्रेजेंट इज इन महाराष्ट्र। अभी प्रेजेंट के महाराष्ट्र में ही पड़ता है इनाम गाँव, नियर बाय द महाराष्ट्र और द बेसिकली इन महाराष्ट्र एंड नियर बाय द गोड रिवर। कौन सी रिवर? गोड रिवर। ओके, बेसिकली बेटा वी हैव जस्ट फाउंड सम बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं इनाम गाँव में जो कि शो करता है कि हाउ द पीपल दे आर लिविंग, हाउ दे आर जस्ट हाउ दे आर स्पेंड देयर लाइफ। ठीक है, और ये हमें किस चीज़ों से पता चलता है? फॉर द एग्जर्वेशन, यानी कि एग्जर्वेशन से खुदाई के टाइम पे मिलती हैं चीज़ें, एज वेल एज सोसाइटी कैसी थी, हाउ पीपल आर लिविंग, हाउ दे सर्वाइव, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। ठीक है, फॉर द एविडेंसेस। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाउसेस। सो इनाम गाँव में हाउसेस कैसे थे? पीपल बेसिकली बिल्ट अ मड हाउसेस। कैसे हाउसेस बनाते थे? मड हाउसेस। ओके, एंड कैसी शेप में? दैट वुड बी इन रेक्टेंगुलर इन शेप। कैसी शेप में? रेक्टेंगुलर इन shape, and basically they have a separate room for cooking। जैसे हमारे घरों में भी किचन अलग होता है, सेम एज दैट द पीपल ऑफ इनाम गाँव में रहने वाले लोगों का किचन भी सेपरेट होता था। ओके, मड वॉल्स होती थी। ठीक है, बेसिकली दे हैव अ कैनल सिस्टम। ओके, दे हैव अ कैनल सिस्टम विच इज़ कनेक्टेड टू द रिवर। घरों के आसपास नालियाँ निकल रही थी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं हड़प्पन सोसाइटी में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सेम एज दैट वही ड्रेनेज सिस्टम आगे जाके कैनल से मिल रहा है। कैनल मीन्स नहर होती है। ठीक है, और वही कैनल आगे जाके रिवर से मिलती है। एंड बेसिकली दे हैव अ फील्ड, पानी के लिए भी, वो पानी की सप्लाई के लिए भी उसी कैनल का यूज़ करते थे। The size of houses indicate that the rich farmers live in the center of settlement, while those who are work for them associate with the craft and trader live in the fringes। बेसिकली बेटा जो लोग शहर के सेंटर में रहते थे दे आर शो दैट दे आर अ रिच पीपल, रिच फार्मर, यानी कि कुछ फार्मर्स पुअर भी होते थे, कुछ फार्मर रिच भी होते थे। तो द पर्सन हु आर अ रिच फार्मर, जो लोग रिच फार्मर होते थे, दे कैन लिव इन अ सेंटर ऑफ इनाम गाँव। इनाम गाँव के सेंटर में रहते थे, और जो लोग थोड़े किनारे किनारे रहते थे दे आर द पुअर फार्मर्स, और वो लोग काम करते थे। ठीक है, सेकेंड थिंग, मटीरियल इन यूज़। विच मटीरियल दैट इज़ यूजिंग इन इनाम गाँव? अच्छा, लिसन स्टूडेंट्स, वेयर इज़ द इनाम गाँव नाउ? टेल मी। येस, इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, गॉड रिवर के नियर, तो याद रखना है आपने ये चीज़ें। ओके, द एग्जर्वेशंस रिवील्स यूज ऑफ आइवरी, गोल्ड, कॉपर, दीज आर द मटीरियल्स। बेटा ये एग्जर्वेशन मीन्स अगेन हमें खुदाई से पता चलता है, बहुत सारे एविडेंसेस मिले दैट शो दैट द यूज़ ऑफ गोल्ड and the use of copper were using by the इनाम गाँव people, यानी कि इनाम गाँव में रहने वाले लोग उसे यूज़ करते थे। However, majority of tools continue to be made of stone, और हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले which are made up of stones। कॉपर, गोल्ड की तो सामान हमें मिला, बट एज वेल एज वी हैव ऑल्सो फाउंड दैट सम टूल्स ऑफ स्टोन। Now we are just talking about the pottery. Okay, pottery is found in generally red with the black design,
कैसी पोट्री थी? पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चीज़ें से बर्तन बने हुए थे। कैसे थे? दैट वुड बी रेड कलर के और उस पर ब्लैक कलर का डिज़ाइंस हो रहे थे। ओके, वॉज प्रिविलेंट इन सिविलाइजेशन इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये अभी हम बात कर रहे हैं साउदर्न पार्ट की, ठीक है, और ऐसे ही चीज़ें हमें नॉर्दर्न इंडिया में भी मिली थी। लिसन बेटा, दिस इज़ द क्वेश्चन 1 एंड दिस इज़ द आंसर 1। क्वेश्चन इसका पेज नंबर 41 पे है। दिस इज़ द आंसर नंबर 2। क्वेश्चन इसका पेज नंबर 41 पे है। सो दिस क्वेश्चन आंसर्स यू कैन डू इन योर नोटबुक एज वेल। ओके, द थर्ड वन, फूड हैबिट्स। सो इनाम गांव के लोगों की फूड हैबिट्स कैसी थी? बेसिकली दे हैव अ मिक्स्ड डाइट और मिक्स कल्टीवेशन, यानी कि ये लोग वेजिटेबल्स भी खाते थे एज वेल एज दे कैन यूज़ द मीट ऑल्सो। दे ग्रोथ क्या ग्रो कर रहे थे ये? वीट, barley, lentils, beans have noticed in this region. It is also evidence of consuming fish. यानी कि obviously river के पास है तो people used to eat fish also, यानी कि ये मीट भी खाते थे और वेजिटेबल्स भी खाते थे। ठीक है। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या इनाम गांव के पीपल एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? क्या उन्हें पालते थे? सो द आंसर इज़ येस। द एग्जिबिशन शोज, एग्जिबिशन से पता चलता है कुछ एनिमल्स की हमें बोन्स मिली, लाइक गॉट, शीप, डॉग, पिग एंड हॉर्सेस वर एट वॉज डोमेस्टिकेटेड। बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्सेस के हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिलते, बट इन द वैदिक पीरियड तक आते आते वी हैव सम फाउंड द हॉर्सेस, हमें हॉर्सेस के क्लूज़ भी मिले हैं। सो यहाँ पर हमें एनिमल्स की बहुत सारे क्लूज़ मिले हैं इनाम गाँव में। कस्टम्स, द एग्जिबिशन शोज टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा इज़ अ फिगर, मतलब मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ टॉयज़ होते थे मिट्टी के बने हुए। एनिमल्स दैट सो मोर इज़ अ बुल। ठीक है, बुल मिला। पॉपुलरली इट्स वर रिवील्ड एनिमल। सम रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन द अर्थनवेयर एंड फिगरेंस। दिस शो द पीपल ऑफ दोज दैम बिलीव इन अ जर्नी आफ्टर डेथ। बेटा वाई इनाम गाँव इज़ सो मच स्पेशल? क्यों था इनाम गाँव इतना स्पेशल? द रीज़न इज़ कि यहाँ पर हमें एक स्पेशल टाइप की चीज़ें मिली, जहाँ पर इफ़ अ पीपल वेज डेड, अगर कोई पर्सन मर जाता था तो उसकी बॉडी को उस समय पर दबा दिया जाता था। और कैसे दबा दिया जाता था? उसके साथ उसकी फेवरेट चीज़ों को रख के, लाइक इफ़ उसके कपड़े, उसके यूज़ करने वाले बर्तन, यहाँ तक कि उसके एनिमल और उसके खाने की चीज़ें, ये सारे बर्तन सब चीज़ें रख दी जाती थी, ताकि उस लोगों को ये बिलीव था कि इस जन्म के बाद जो उन्हें अगला जन्म मिले वहाँ पे इन सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दे हैव बिलीव दैट। सी दिस, हैव यू सीन इन दिस पिक्चर बेटा? इसके ऑर्नामेंट्स भी लगाए हुए हैं, साथ में जो ये पर्सन जो चीज़ यूज़ करता होगा वो भी इसके साथ रखी हुई है। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर की जो चीज़ें, जो टूल्स, जो ऑर्नामेंट्स ये पहनता होगा या होगी, उसके साथ ये दबा दिए जाते हैं कि इनको आगे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड दिस इज़ द आंसर नंबर ऑफ 3 ऑल्सो। क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। द डिक्लाइन, अब ये इनाम गाँव कैसे ख़त्म हुआ? द डिक्लाइन ऑफ सेटलमेंट एविडेंट बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल, यानी कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ होगा चीज़ें डिक्लाइन हुई। रिडक्शन ऑफ क्रॉप रिसोर्सेज, यानी कि अब लोगों ने क्रॉप को ग्रो करना कम कर दिया। अपेरेंटली दिस वर रिडक्शन इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाने की कमी से। बेटा वी कांट से अब प्रॉपरली श्योर कि ऐसा ही हुआ होगा, वी कैन जस्ट एक हम इमेजिनेशन और एक सिर्फ एक कल्पना लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। वी कांट श्योर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। हम इतनी पुरानी चीज़ें श्योरली नहीं कह सकते, बट वी कैन जस्ट टेक अ आइडिया, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। सो बेसिकली क्रॉप की कमी की वजह से, क्या पता वहाँ अर्थक्वेक आया हो, फ्लड आई हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे इनाम गाँव में सभी जगह पर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्या पता लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस। ओके,
अदर सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स में क्या था बेटा? आर्टिफैक्ट्स होते छोटे छोटे से टॉयज़. अभी आप देखते हो टॉयज़ एक तरीके से एट दैट वुड बी मेड अप ऑफ मड, मिट्टी के, ठीक है, यानी कि पोट्री यानी कि मिट्टी की चीज़ों से. आर्टिफैक्ट्स से हम पता लगा सकते हैं एविडेंसेस के बारे में, ठीक है. एंड स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए. इन सभी चीज़ों से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है. Now the third one is burials. So burials are the custom of people, parts of the world, many similarities. बहुत सारी similarities हमें यहाँ पे देखने को मिली बेटा. many of them, अभी शायद मैं आपको ये जो बताने जा रही हूँ थोड़ा सा weird लगे, ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. आप इनाम बकाओं के बारे में गूगल पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है. तो इन द मैनी ऑफ बरीड देम सम ऑफ बरीड विद द प्रोमिसेस ऑफ देयर होम. कुछ लोगों को उनके घर के आंगन में ही दबा दिया जाता था. ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इनाम गाँव की, ठीक है. इनाम गाँव की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पर घर के लोगों को उनके घर के लॉबी में या बरामदे में ही दबा दिया जाता था आफ्टर डेथ, या घर के बाहर ही. मोस्ट ऑफ द पीपल अर्लियर एजेस ऑल्सो वॉन्टेड इंश्योर डेड बॉडीज़ आर नॉट हार्म्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स. उन्हें लगता था कि अगर वो कहीं बाहर दूर जाकर वो अपने रिलेटिव्स की बॉडी को दबाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स है यानी कि जंगली जानवर है वो बॉडी को निकाल कर खाएंगे या फिर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं. उनको सेफ़ रखने के लिए वो क्या करते थे, उनको अपने घरों के अंदर कंट्री यार्ड यानी कि अपने घर के गार्डन में ही या अपने घरों के बीचों बीच, जो उनका बड़े बड़े घर होते थे उस टाइम, अपने घरों के बीचों बीच ही व्हाट दे हैव टू buried on the homes also और with the कम्युनिटी. और सम टाइम बेटा हमने ये भी देखा कि पूरी फैमिली को एक ही जगह पर दबा दिया गया, ठीक है. दबा दिया गया मीन्स उनका एक कंट्री यार्ड कि अगर कोई किसी भी फैमिली का मेंबर मरा तो उसकी जगह उसके रिलेटिव्स को भी वहीं दबा दिया गया. गॉट इट. नाउ द वर्ड इज मेगालिथ. व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ मेगालिथ? बेसिकली बेटा वी हैव फाउंड द मेगालिथ इन कश्मीर, ठीक है, इन अ दक्कन प्लेट्यू एज वेल और इन अ कश्मीर ऑल्सो, ठीक है. तो बेसिकली कश्मीर में हमें बहुत बड़े मेगालिथ्स मिले. व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ मेगालिथ? मेगा मीन्स होता है बेटा लार्ज एंड लिथ मीन्स होता है रॉक. ओके, सो दैट इज़ द ट्रेंड टू बरी द डेड अंडर ह्यूज बिल्डिंग्स. यानी कि हैव यू सीन दिस? दीज आर द मेगालिथ्स एंड यहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता था, ठीक है. एंड दिस वर द होल, यहाँ से उस बॉडी को अंदर एंटर करवाया जाता था. सो दिस इज़ कॉल्ड अ मेगालिथ. ये बड़े बड़े से, मेगा मीन्स लार्ज एंड लिथ मीन्स स्टोन और अ रॉक. इन मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ ह्यूज स्टोन फॉर्मेशन that would be found of over the earth, and some places they have under the earth surface. At the some places burials surrounded by rocks or a stone, it is notified that someone lies in beneath. These are instance couple buried together, यानी कि जो लोग हस्बैंड वाइफ होते थे उन्हें एक ही साथ दबा दिया जाता था. एंड सम प्लेसेस ऑफ एरिया हैड मेंबर ऑफ द फैमिली बरिड क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक के साथ एक बॉडी को रख दिया जाता था. यानी कि जो उसके रिश्तेदार होते थे, पिताजी मरे, उनकी बॉडी को दबाया गया मेगालिथ्स के, उसी के साथ उनकी वाइफ को, फिर उनके साथ उनके बच्चों को, ऐसे करके एक फैमिली का बना दिया जाता था. साइंटिस्ट हैव स्टडी हाउ द स्केलेटन्स फाउंड क्लोज टू ईच अदर हैड सम फैमिली लिंक्स. यानी कि कुछ स्केलेटन्स हमें साथ साथ मिले साइंटिस्ट को, जिससे कि उन्होंने एज्यूम किया कि शायद ये एक ही फैमिली के मेंबर्स रहे होंगे. सो बेसिकली बेटा दिस स्टोन्स आर पॉसिबली अ वे टू शो द पर्सन ऑफ इम्पॉर्टेंस वॉज बरीड देयर वुड बी टेकन एंड मैसिव एफर्ट टू प्लेस द स्टोन वे दे आर. बेटा कितना डिफ़िकल्ट होता होगा इन स्टोन्स को रखना. और बेसिकली बेटा इसमें इनके इमोशंस होते थे कि एक ही पर्सन की इम्पॉर्टेंस, कि उसकी फैमिली को उसके मरने के बाद भी उसी के
साथ रखा जा रहा है। सो बेसिकली इन सम प्लेसेस बेटा द बॉडी वॉज लेट रेस्ट अलॉन्ग, उनके साथ साथ मैंने आपको बताया जैसा कि ये है कि उनके साथ साथ इट प्लेस हैव गोल्ड पीसेस, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें रख दिया जाता था। सम टाइम तो उनके फेवरेट एनिमल को भी उनके साथ ही दबा दिया जाता था ताकि उनको लगे कि उनका जो फेवरेट एनिमल है वो उसके साथ है। दिस लेड हिस्टोरियन टू बिलीव आइदर द कम्युनिटी बिलीव एंड लाइफ आफ्टर डेथ और रीबर्थ, कि आगे वाले जन्म में उन्हें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को भी रखते थे। बेटा दिस क्वेश्चन आंसर्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल द आंसर्स आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड, तो प्लीज़ उसे ध्यान से देखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग टू वॉच फुल वीडियो।